Hello dear students, today we will see the next part from the chapter size reduction. I welcome you all in this presentation. Today we will discuss factors affecting size reduction, mechanism of size reduction, laws governing size reduction and general equipment for size reduction. Let's see first factors affecting size reduction. So in this, the factors affecting size reduction will affect the size reduction as well as the degree or rate of the size reduction. So first factor is the hardness. Okay, so now the hardness of material can affect the process of size reduction because it is easier to break the soft material to small size than the harder material. Okay, means if we compare the soft material with the harder material will take more time to break down into the smaller pieces. Means we can draw the conclusion that the more harder is the material, there will be the difficulty in the size reduction. That's it for hardness. Next is the toughness. Okay, first of all, what is toughness and the why the material become tough? Okay, generally these tougher material are soft in nature, but there is the presence of some amount of moisture, or that particular materials consist of certain fibrous materials or fibrous lines. Okay, so that's why due to presence of that fibrous lines or due to presence of that moisture, that material becomes soft but they are tougher in nature. Okay, अगर हम हार्ड या टफ मटेरियल में डिफरेंस करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं लकड़ी या मूली का. ओके, सो मूली तो सबको पता है. मूली क्या रहती है, दिखने में सॉफ्ट रहती है, बट उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है और फाइबरस मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं. और अगर उसका कंपैरिजन हम हार्डर मटेरियल या लकड़ी से करेंगे तो क्या होगा, हार्डर मटेरियल इजीली ब्रेक होगी एज कंपेयर टू दैट सॉफ्टर मटेरियल और दैट टफर मटेरियल. ओके, मतलब क्या, अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग हम हार्डनेस वर्सेस टफनेस में स्टडी करेंगे तो क्या, ऐसे मटेरियल जो कि नेचर में सॉफ्ट है बट they are tougher, so that material will require more time as compared to the harder material. Okay, और टफ मटेरियल टफ क्यों होता है, बिकॉज उसमें देर आर प्रेजेंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल और दे हैव द मॉइस्चर कंटेंट प्लस दे आर फाइबरस इन नेचर. ओके, सो द एग्जाम्पल ऑफ द tougher material are the fibrous drugs, green fresh leaves are soft but they are also tough. Okay, now this is the problem कि मटेरियल अब टफ है. अब टफ मटेरियल को कैसे डील करेंगे या उसका साइज रिड्यूस कैसे करेंगे, बिकॉज द टफ मटेरियल कैन बी रिड्यूस बाय लोअरिंग द टेम्परेचर एंड दिस is advantageous because there will be less decomposition or degradation of the thermolabile substances. क्योंकि हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, मतलब क्या, जो थर्मोलेबल सब्सटेंसेस है वो जल जाएंगे ज़्यादा टेम्परेचर अगर रहा तो, या उनकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाएंगी. बट अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं मतलब क्या होगा, उनका डिकम्पोजिशन भी कम होगा और नो लॉस ऑफ द वोलाटाइल मटेरियल का लॉस नहीं होगा, नो ऑक्सीडेशन एंड नो एक्सप्लोजन. सो दिस इज द ऑल अबाउट हार्डनेस एंड टफनेस. ओके, so again, tougher material are nothing but they are soft but tough material and may present more problem in the size reduction as compared to the harder material. Next is the stickiness. So this stickiness can cause the difficulty in size reduction. How? Because the sticky material will get stick to the equipment. अब यहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट, जिस इक्विपमेंट से हम साइज रिड्यूस कर रहे हैं वो इक्विपमेंट को जाके स्टिकी मटेरियल क्या होगा, जाके उसको स्टिक हो जाएगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है. तो अगर वो मटेरियल को इक्विपमेंट को जाके स्टिक हो जाएगा तो क्या होगा, एक तो वो मटेरियल का वेट लॉस होगा. से फॉर एग्जाम्पल हमने 10 ग्राम्स मटेरियल लिया है और वो 10 ग्राम का हमको साइज रिड्यूस करना है, तो वो आधा मटेरियल स्टिक हो रहा मतलब 2 ग्राम्स, चलो 2 ग्राम स्टिक हो रहा मतलब क्या, लास्ट में इनिशियल फीड हमारा है 10 ग्राम लेकिन फाइनल रिजल्ट हमको क्या आ रहा है 8 ग्राम, मतलब यहाँ पे 2 ग्राम का क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है. मतलब ये इज इट इफिशिएंट नहीं. तो उसके वजह से क्या हो रहा है, फैक्टर, ये जो स्टिकीनेस का फैक्टर है ये साइज रिडक्शन को कैसे अफेक्ट कर रहा है, बिकॉज इसका रेट स्लो कर रहा है और प्लस क्या हो रहा है कि वो जाके वो इक्विपमेंट को स्टिक कर रहा है. मतलब फर्स्ट इट विल कॉज द डिफिकल्टी इन साइज रिडक्शन बिकॉज मटेरियल में स्टिक टू द सर्फेस ऑफ और मेश में गेट
चोक्ड। ओके, मेश किस लिए, मेश मतलब सीव्स, सीव्स किस लिए यूज करते हैं, टू सेपरेट द पार्टिकल्स, जो कोर्सर पार्टिकल रहेगा या फाइन्स पार्टिकल रहेगा उनको लास्ट में रिसीवर से जाने से पहले उसको सेपरेट करते, इसलिए मेश आर यूज। तो वो मेश के होल्स को भी ये क्या कर सकता है, स्टिकी मटेरियल जाके चोक कर सकता है। अब ये अगेन प्रॉब्लम हो गया कि मटेरियल स्टिकी है उसके वजह से वो इक्विपमेंट को जाके स्टिक कर रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, हम वो मटेरियल को क्या कर सकते हैं, इक्विपमेंट में फीड करने से पहले उसका नेचर जान के कि ये स्टिकी है तो इसको क्या करेंगे, हम पहले ड्राई करेंगे मतलब क्या करेंगे, ओवन में उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर में रख के उसका मॉइस्चर कंटेंट क्या करेंगे, हम लॉस कर लेंगे, उसका मॉइस्चर रिड्यूस कर लेंगे। ओके, या फिर क्या कर सकते हैं हम, एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल सच एज कायोलिन टू सल्फर, जो उसका स्टिकीनेस को रोकेगा या उसको नहीं क्या पर्टिकुलर इक्विपमेंट को जाके स्टिक होने से, अडेर होने से क्या करेगा, अवॉइड करेगा। एग्जाम्पल्स आर द गम्स, रेजिन मटेरियल्स। क्या है ये, दे आर द इनर्ट मटेरियल विच कैन prevent the stickiness of that particular material. Fourth is the slipperiness, because slipperiness मतलब क्या, वो slip करेगा material through the equipment, so that's why this can affect the rate of size reduction. नेक्स्ट इज द मॉइस्चर कंटेंट। अभी तक जो पढ़ा हमने, मॉइस्चर कंटेंट किस किस बातों के लिए अफेक्ट करा है, अगर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहा तो मटेरियल हार्डर बन सकता है, प्लस मटेरियल ज़्यादा टफ बन सकता है, प्लस वो क्या कर सकता है, स्टिकीनेस की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। ओके, सो इन्फ्लुएंस प्रॉपर्टीज सच एज द हार्डनेस, टफनेस एंड स्टिकीनेस इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज प्रेजेंट। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर वो मटेरियल में लेस देन 5% मॉइस्चर रहा तो उन मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, ड्राई ग्राइंडिंग कर सकते हैं। अगर 5% से ज़्यादा उसका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा, मीन्स मॉइस्चर कंटेंट इज प्रेजेंट दैट इज मोर देन 5%, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको वेट ग्राइंडिंग के लिए भेज सकते हैं। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट टू रेट ऑफ size reduction. Next is the melting or the softening point. Melting or softening point, this is useful for the thermolabile substances. Means क्या, if the substances कि जिनका हमको साइज रिड्यूस करना है दैट आर थर्मोलेबाइल इन नेचर। थर्मोलेबाइल मीन्स क्या है, दे आर सेंसिटिव टू heat. Okay, so heat generated during the grinding creates problems with the materials which tend to melt, stick or decompose due to the heat. Okay, in yesterday's lecture I have told you that the equipments which are used to reduce the sizes have the heat in it. They are based on the principle of heat transfer. heat generate होती है और वो heat generate होने के वजह से साइज रिडक्शन की प्रोसीजर फॉलो हो सकती है, या वो इक्विपमेंट में हीट डेवलप जनरेट होती है। बोले तो जो थर्मोलेबल सब्सटेंसेस है वो हीट में स्टेबल रह सकते क्या, नहीं, आइदर वो मेल्ट होंगे, स्टिक होंगे या फिर डिग्रेड हो सकते हैं। डिग्रेड होने के बाद क्या हो सकता है, उसके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज लॉस हो सकते हैं। मतलब क्या, आइदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कूलिंग सपोर्टर्स यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ द साइज रिडक्शन। मतलब क्या, the melting or softening point can affect the rate of size reduction. So example मतलब थर्मोलेबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल कौन से, यहाँ पे कैम्फर, थाइमोल, स्टीयरिक एसिड, वैक्सेस एक्सेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मटेरियल स्ट्रक्चर. से फॉर एग्जाम्पल इफ द ड्रग इज vegetable drug. Okay, if we choose the vegetable drug, so generally the vegetable drugs have the cellular structure, and that cellular structure is responsible for producing the long fibrous particles on size reduction. Okay, so that long fibrous particles are not reduced completely. मतलब क्या होता है कि अगर लॉन्ग फाइबरस पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हो तो पहले इक्विपमेंट में फीड करने से पहले या फिर साइज रिडक्शन के बाद भी फर्दर उसको कटिंग, स्लाइसिंग की प्रोसीजर के लिए जाना पड़ता है। मतलब ये क्या हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, हमारा रेट ऑफ साइज रिडक्शन भी स्लो हो रहा है, प्लस एक एक्स्ट्रा स्टेप कटिंग या स्लाइसिंग की हमको ऐड करनी पड़ रही है। मतलब ये क्या हो रहा है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। मतलब मटेरियल स्ट्रक्चर कैसे अफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ साइज रिडक्शन को स्लोअर कर रहा, प्लस एडिशन ऑफ स्टेप्स भी हमारे क्या स्टेप्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब मटेरियल स्ट्रक्चर कैसा नहीं होना चाहिए, लॉन्ग फाइबर स्ट्रक्चर अगर रहा तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। सो दिस इज हाउ द मटेरियल स्ट्रक्चर विल अफेक्ट द rate of size reduction. Next is the size of the starting material. Means here the size of the material from the feed. जो feed material है, जो hopper है, जहाँ से हम ये material feed करेंगे कोई भी equipment में, अगर उसकी size
से फॉर एग्जांपल बहुत बल्की है साइज या बहुत लार्जर साइज है और लार्जर साइज को हमें फाइन्स में कन्वर्ट करना है, मतलब या फिर कोर्सर को हमें फाइन्स में कन्वर्ट करना है, तो लार्जर वालों को फाइन्स में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा प्लस एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू अगर पार्टिकल कोर्सर रहे तो। ओके, कोर्सर को फाइन में करना है तो लार्जर के कंपैरिजन में इसको क्या टाइम कम लगेगा प्लस तुम्हारा रेट भी क्या एनहांस होगा। ओके, सो दिस इज हाउ साइज ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल कैन अफेक्ट योर रेट ऑफ साइज रिडक्शन। नेक्स्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी रिड्यूस। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल शुड बी ऑप्टिमम। अगर ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी तो अगेन टीडीएस प्रोसीजर हो जाएगी साइज रिडक्शन की और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगी। ओके, देन साइज, शेप, फ्लो एंड बल्क डेंसिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी ऑप्टिमम। शुड बी, सपोज शेप कैसे, अगर ज़्यादा रॉड शेप रहे, नीडल लाइक शेप रहे या ज़्यादा फाइबरस, लॉन्ग फाइबरस का जो एग्जांपल लिया है, ज़्यादा लॉन्ग फाइबरस शेप रहे तो उनको स्मॉल करने में ज़्यादा डिफिकल्टी रहेगी एज कम्पेयर टू लार्जर को स्मॉल करने में कम डिफिकल्टी रहेगी एज कम्पेयर टू दिस फाइबरस स्ट्रक्चर्स। ओके, देन लास्ट इज द रेशियो ऑफ फीड साइज टू द प्रोडक्ट साइज। ओके, सो टू गेट द फाइन पाउडर इन द मिल इट इज रिक्वायर्ड दैट स्मॉल फीड साइज और फेयरली स्मॉल फीड साइज शुड बी यूज्ड। ओके, अगर हमें फाइन पाउडर मील में से निकालना है तो स्मॉल फीड साइज रहनी चाहिए। फीड साइज बोले तो क्या, जो फीड कर रहे हैं हम, जो इंसर्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट में, तो उसका अमाउंट कम रहना चाहिए। ओके, सो इट शुड बी लेस, हेंस इट इज नेसेसरी दैट टू कैरी आउट द साइज रिडक्शन प्रोसेस इन सेवरल स्टेजेस using difficult equipments. Okay, so that's why the example is primary crushing followed by the coarse powder and then fine grinding। मतलब क्या कि फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है प्राइमरीली कि क्रश करना है वो अगर बहुत ज़्यादा बल्कि रहा तो, और उसके बाद उसको कोर्स में कन्वर्ट करना है और उस कोर्स को हमें क्या करना है फाइन ग्राइंडिंग के लिए आगे भेजना है। सो दीज वेर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ साइज रिडक्शन। नाउ नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। ओके, जनरली क्या होता है कि इफ वी हैव टेकन द लार्जर पार्टिकल्स एंड इफ द लार्जर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट विद द फाइन क्रैक्स। ओके, तो फाइन क्रैक्स को पहले साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, अगर एक लार्जर मटेरियल है, लार्जर पार्टिकल है, तो वो लार्जर पार्टिकल में अगर फाइन क्रैक्स प्रेजेंट है तो फाइन क्रैक्स को पहले स्टेप में क्या करते हैं, ये ओपन करते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट ओपनिंग अप ऑफ द स्मॉल फाइन फिशर्स दैट इज क्रैक्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट। जो ऑलरेडी लार्जर पार्टिकल है अगर उसमें छोटे से फाइन क्रैक्स प्रेजेंट है तो उन फाइन क्रैक्स को क्या होता है प्रेशर देके, फोर्स अप्लाई करके, शियर स्ट्रेस अप्लाई करके क्या होता है उनको ओपन किया जाता है। ओके, नाउ सेकेंडली फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सर्फेसेस। न्यू सर्फेसेस कैसे फॉर्म होगा, समझो चलो एक बहुत लार्ज पार्टिकल है उसको दो पीसेस में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो दो न्यू सर्फेसेस फॉर्म हो गए, उन दो को और चार में अगर हमने और चार में उसको अगर उसकी साइज रिड्यूस कर दी तो क्या होगा, और चार न्यू सरफेसेस आ गए। मतलब पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर फाइन क्रैक्स प्रेजेंट रहे वो लार्जर पार्टिकल में तो उन फाइन क्रैक्स को हम क्या करेंगे फर्स्ट ओपन करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन फाइन पार्टिकल से अलग अलग पीसेस, स्मॉल पीसेस बना के न्यू सरफेसेस जनरेट करेंगे। ओके, लार्ज पार्टिकल्स विथ सेवरल क्रैक्स अगर प्रेजेंट रहा, मोर रैपिड विल बी द साइज रिडक्शन। स्मॉल पार्टिकल्स विथ लेस और नो क्रैक्स देन स्लो विल बी द साइज ऑफ रिडक्शन। देखो इनका रिलेशन कैसा है, अगर पार्टिकल साइज लार्ज है और उस पर सेवरल क्रैक्स प्रेजेंट है तो रैपिड साइज ऑफ रिडक्शन रहेगा, और अगर स्मॉल पार्टिकल साइज है जिसमें एक भी क्रैक प्रेजेंट नहीं है तो उसका साइज ऑफ रिडक्शन कैसे रहेगा, स्लो रहेगा। एग्जाम्पल दैट इज कोल कंटेंट्स नो स्मॉल क्रैक्स, मीन्स क्या है लार्ज पार्टिकल्स आर ब्रोकन मोर रैपिडली देन द स्मॉल वन। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैंने एक बड़ी स्टिक दी और वो बड़ी स्टिक को अगर आपको मैंने बोला कि इसको नहीं क्या दो टुकड़े में बांट दो, तो आप दो टुकड़े में इसको कट कर दो तो आप क्या इजीली कर सकोगे। लेकिन वो दो टुकड़ों की जगह पे अगर मैंने बोला आपको कि इसको 10 स्मॉल पीसेस में कट करो तो क्या डिफिकल्टी रहेगी 10 स्मॉल पीसेस में कट करने का। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि लार्जर पार्टिकल्स आर ब्रोकन मोर रैपिडली देन द स्मॉल वंस। ओके, सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द साइज रिडक्शन। क्या बेसिक मैकेनिज्म है, फर्स्ट कि अगर फाइन क्रैक्स प्रेजेंट रहा तो उनको ओपन करना, सेकेंड क्या है न्यू सरफेसेस फॉर्म करना। नाउ फाइन ग्राइंडिंग नीड्स मोर एनर्जी टू इनिशिएट क्रैक्स। अगर एक भी क्रैक्स प्रेजेंट नहीं रहा
तो the energy requirement will be more first to produce the cracks, then there will be the crack opening, and then there will be the formation of new surfaces. So from energy utilization point of view, size reduction is an inefficient process. because क्यों इनएफिशिएंट प्रोसेस कहा है? अगर एनर्जी के यूटिलाइजेशन से देखें तो बिकॉज मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ओके, सो इफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लोड अप्लाइड, कितना फीड अप्लाई कर रहे हैं हम, कितना मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितनी है, देन मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पर्टिकुलर rate, what is the rate of size reduction, then last is the nature of force exerted. कौन से फोर्स से, कौन से प्रेशर से, कौन से shear स्ट्रेस से हम साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये जो हमने पढ़ा, दैट वाज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द साइज रिडक्शन. Now these are the main focused mechanism of size reduction. First one is the cutting, which is also referred as slicing, compression, brushing, impact, attrition, and impact and attrition in combination. We will see it one by one. Okay, now first is the cutting. Okay, now the material is cut on a small scale by means of the sharp blade, either or knife, रूट कटर और एनी अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट. ओके, सो जनरली स्मॉल स्केल में हमारे लैब में, लेबोरेटरी में सपोज हमें कुछ कट करना रहा. ओके, सो दैट मटेरियल कैन बी कट इनटू स्मॉल पीसेस बाय यूजिंग द शार्प ब्लेड, आइदर नाइफ, रूट कटर और एनी अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ द साइज रिडक्शन. एक लार्जर पार्टिकल है, अगर उसको हमें स्मॉलर पीसेस में कट करना है तो हम कटिंग प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं. उसके लिए इक्विपमेंट, या कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं? ब्लेड, नाइफ या रूट कटर एक्सेट्रा. ओके, बट ऑन लार्ज स्केल अ कटर मिल इज यूज्ड. स्मॉल स्केल में रहा तो नाइफ, सीजर्स, रूट कटर से काम हो जाएगा. बट इन केस ऑफ द इंडस्ट्री, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, कि इंडस्ट्री में कैसे सिनेरियो है. अगर इंडस्ट्री में हमें कोई लार्जर पार्टिकल को कट करना है तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? एग्जाम्पल, कटिंग का कौन सा एग्जाम्पल है? दैट इज द कटर मिल. ओके, सो कटिंग ऑफ द ड्रग इज यूजुअली डन टू हैसन द ड्राइंग ऑफ द ड्रग्स. की ड्रग्स की ड्राइंग करने से पहले हमें उनको कट करना रहा और फर्स्ट स्टेप फॉलो करनी रही साइज रिडक्शन की, दैट इज कटिंग और स्लाइसिंग. तो इंडस्ट्री में कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है? दैट इज नथिंग बट द कटर मिल. और व्हाट इज कटिंग? बेसिकली सिंपली द कटिंग ऑफ द मटेरियल इनटू स्मॉलर पीसेस. ओके, स्मॉल स्केल पे नाइफ, सीजर से, और इक्विपमेंट, इंडस्ट्री में इक्विपमेंट कौन सा यूज किया जाता है? कटर मिल. नेक्स्ट इज द कॉम्प्रेशन और द, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज द ब्रशिंग. ओके, सो in this method the material is crushed by the application of pressure. Okay, so generally the diagram can represent it very clearly. Okay, crushed means क्या? टू सर्फेसेस जो ग्रे कलर में प्रेजेंट है डायग्राम में, जो एक का एरो डाउनवर्ड है, एक का एरो अपवर्ड है. ओके, सो दीज आर द टू सर्फेसेस, टू हार्ड सर्फेसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द प्रेशर. और उनके बीच में क्या प्रेजेंट है? मटेरियल इज प्रेजेंट, द पार्टिकल्स जिसके हमें साइज रिड्यूस करना है वो पार्टिकल्स प्रेजेंट है. ओके, सो दैट मटेरियल्स आर placed in between the two surfaces, and that materials are crushed or compressed by the pressure which are generated by that two surfaces. This is nothing but the brushing or the compression. Material is crushed by the application of pressure and particle disintegration by the two rigid forces by the two surfaces. Okay, so again on small scale size reduction is carried out by using the mortar pestle. mortar pestle में आप लोग क्या करते हैं? पेसल का पेसल आपका एक सरफेस हो गया, मोटर एक सरफेस हो गया, उसके बीच में आप क्या करते हैं? पार्टिकल्स जिसकी साइज रिड्यूस करनी है उसको रखते हैं और उसको सिंपली क्या करते हैं? प्रेशर अप्लाई करके क्रश करते हैं. ओके, सो इसमें क्या हो सकता है? मटेरियल्स आपका जिससे आप सरफेसेस वो मूविंग हो सकता है, जैसे पेसल आपका मूविंग है और मोटर क्या है? स्टेशनरी है. ओके, सो पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन बाय द टू रिजिड फोर्सेस. इक्विपमेंट मोटर पेसल लेबोरेटरी में स्मॉल स्केल में, और इंडस्ट्री में क्या होता है? रोलर मिल. ओके, now next is the an important mechanism of the size reduction is the impact. Okay, now impact occurs when the material is more or less stationary. Okay, so either the material can be stationary,
and the surface is moving, or the material can be moving and surface is stationary. Opposite काम करता है ये impact. Okay, so here impact occurs when the material is more or less stationary and is hit by an object moving at high speed, or when the moving particle strikes a stationary surfaces. Okay, तो इसमें क्या होता है, in case of the impact, suppose याद रखो हैमरिंग होती है, हैमरिंग या बैंगिंग होता है, मतलब क्या, एक तो मटेरियल मूविंग रहेगा और आपका स्टेशनरी जो भी है ऑब्जेक्ट है वो आपका, जिससे आप उसको बैंग कर रहे हैं, इक्विपमेंट है जो आपका, तो वो क्या रहेगा, वो स्टेशनरी रहेगा, या तो फिर वो आपका इक्विपमेंट मूविंग रहेगा और मटेरियल क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। तो इसमें प्रिंसिपल क्या है, बैंगिंग होता है, हैमरिंग होता है ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर। ओके, सो द मटेरियल इज स्टेशनरी एंड इज हिट बाय एन ऑब्जेक्ट। मटेरियल स्टेशनरी रहेगा, एक जगह पे रहेगा, और मटेरियल को हिट करेगा क्या, एक मूविंग ऑब्जेक्ट एट हाई स्पीड। ओके, और द पार्टिकल स्ट्राइक अ स्टेशनरी सरफेस, या तो क्या रहेगा, जो स्टेशनरी सरफेस है, जो ऑब्जेक्ट है उस वो शांत रहेगा और आपका पार्टिकल्स क्या करेंगे, आपके पार्टिकल्स रोटेट करेंगे और वो ऑब्जेक्ट को लेके बैंग करेंगे। बैंग करने की वजह से क्या होगा, वो ओपन हो जाएंगे और स्मॉलर पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब आपका साइज रिडक्शन अचीव हो जाएगा। ओके, सो साइज रिडक्शन ऑकर्स बाय अ सिंगल रिजिड फोर्स। ओके, इन दिस केस देन इक्विपमेंट इज अगेन मोटर पेसल ले सकते हैं, अगेन मोटर स्टेशनरी रहता है और पेसल मूविंग रहता है, या इंडस्ट्री में उसका एग्जाम्पल है हैमर मिल or disintegrator. Okay, so there is in either case the material, so in this case what happens, the material breaks into the smaller pieces. Okay, now next is the attrition. Okay, now what is attrition? So in attrition pressure is applied on the material as in the compression. compression में कैसे होता है, देखो डायग्राम आप देखिए, डायग्राम ये एट्रिशन का। एट्रिशन में क्या हो रहा है, टू एरोज जो डायग्राम्स में दिख रहे हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में वो सरफेस मूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है वो पार्टिकल्स पे। ओके, तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपके कॉम्प्रेशन में क्या रहता कि यहाँ पे दोनों वो मटेरियल नहीं क्या, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है आपका, जो पार्टिकल्स है उन पे नहीं क्या, वो सरफेस बैंग हो रहा है इनटू अपोजिट डायरेक्शन, क्लोज आ रहे हैं, जिसकी वजह से मटेरियल का क्रशिंग हो रहा है। बट यहाँ पे एट्रिशन में क्या होता है, जो दो मटेरियल है जिसके एरो अपोजिट डायरेक्शन में, वो आपका सरफेस क्या होगा, मूव होगा। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा, तो दैट इज नथिंग बट योर एट्रिशन अराइजिंग फ्रॉम द पार्टिकल स्क्रैपिंग अगेंस्ट वन अनदर अगेंस्ट अ रिजिड सरफेसेस। दो सरफेसेस प्रेजेंट है, दो सरफेसेस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन या फिर दो सरफेसेस मूविंग है, उसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो रहा है, क्रशिंग हो रही है। ओके, सो हियर द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू द प्रेशर एज इन कॉम्प्रेशन, बट द सरफेसेस आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। मतलब क्या, प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल सेम है जैसे कॉम्प्रेशन में हुआ था, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि कॉम्प्रेशन में तुम्हारा सब्जेक्ट मूव नहीं, सॉरी आपका सरफेस मूव नहीं हो रहा था, एक ही जगह पे था, स्टेशनरी था, पॉज था, पर यहाँ पे एट्रिशन में जो सरफेसेस प्रेजेंट है जिसके वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपके मटेरियल्स ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो सरफेस क्या है, मूविंग है। ओके, सो द इक्विपमेंट्स फॉर एट्रिशन इज नथिंग बट द रोलर मिल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन मतलब एट अ टाइम दो प्रिंसिपल फॉलो किए जाएंगे, दो मैकेनिज्म फॉलो किए जाएंगे, दैट इज नथिंग बट द impact and attrition. Okay, so examples are the ball mill and the fluid mill. Okay, impact and attrition में क्या हो रहा है, let's see. इम्पैक्ट में क्या हो रहा है कि आइदर मटेरियल या पार्टिकल्स मूव करेंगे, या तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, या तो वो सरफेस मूव करेगा। ओके, और एट्रिशन में क्या हो रहा है कि सरफेसेस मूविंग रहेंगे और मटेरियल शांत चुप स्टेशनरी में रहेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म्स ऑफ साइज रिडक्शन। कौन से मैकेनिज्म्स है, कटिंग के बाद कटिंग, आफ्टर दैट कॉम्प्रेशन, इम्पैक्ट के बाद एट्रिशन, एंड लास्ट वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। नाउ दिस इज द फ्लो चार्ट, दैट इज मेथड्स कौन से अप्लाई किए हैं, दैट इज कटिंग, कॉम्प्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रिशन, एंड लास्ट इज द इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। सो एग्जाम्पल्स क्या है, कटिंग, सीजर्स, shears, कटर मिल एक्सेट्रा, कॉम्प्रेशन, मोटर पेसल,
नट क्रैकर्स, रोलर मिल, ये जो इक्विपमेंट्स है इक्विपमेंट्स को एनलिस्ट किया है और अप्रोक्सीमेट यहाँ पे साइज दी हुई है. ओके, सो यहाँ पे जो डाउनवर्ड एरो है अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द फाइननेस ऑफ द प्रोडक्ट की कटिंग में कम फाइननेस रहेगी एज कम्पेयर टू कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन में कम रहेगी एज कम्पेयर टू इम्पैक्ट, इम्पैक्ट में कम रहेगी एज कम्पेयर टू एट्रिशन. एंड सबसे ज़्यादा फाइन्स हमें किस में से मिलेंगे, जब इम्पैक्ट और एट्रिशन कॉम्बिनेशन में यूज़ होगा तो तब हमें ज़्यादा फाइनर पार्टिकल्स मिलेंगी. नाउ नेक्स्ट आर द एनर्जी लॉस और द लॉस governing the size reduction. Okay, so there are the three laws, that is the Rittinger's law, Kick's law and the Bond's law. Okay, so these laws are used to predict the energy requirements for size reduction. Okay, we will see one by one. Now first is the Rittinger's law. Okay, now what actually the Rittinger's law says us or states us, that is energy required or consumed is proportional to the fresh surface produced. ओके, मतलब इन केस ऑफ द रिटिंगर्स लॉ हमें सिर्फ ख्याल में रखना है एक ही बात की एनर्जी रिक्वायर्ड. अगेन ये तीनों भी लॉ किस लिए यूज हो रहे हैं कि डिटेक्शन करना है हमको कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द साइज रिडक्शन प्रोसेसेस. ओके, मतलब एनर्जी कॉमन है सब में, तीनों में. ओके, नाउ रिटिंगर्स लॉ बेस्ड किस पे है यहाँ पे कि एनर्जी रिक्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस प्रोड्यूस्ड, मतलब न्यू सरफेस प्रोड्यूस मतलब क्या, न्यू सरफेस एरियाज. ओके, सो द इक्वेशन इज लाइक दैट E इक्वल्स टू KR, KR मीन्स व्हाट, रिटिंगर्स कांस्टेंट इनटू 1/d2 माइनस 1/d1. हियर d2 इज द ग्राउंड पार्टिकल्स, एंड ग्राउंड पार्टिकल्स बोले तो जो नए पार्टिकल्स जिसका हमने साइज रिड्यूस्ड किया है वो पार्टिकल्स, एंड d1 बोले तो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज particles. Okay, so where E stands for energy required per mass of feed, KR is the Rittinger's constant, D1 is the average initial size of the pieces, जो starting में है before size reduction की जो average size है वो, और D2 क्या है, after size reduction जो है जो उनका size reduction है, जो उसका size है वो after size reduction. Okay, so 1/d is nothing but the surface area. So this Rittinger's law is more applicable for the fine powder. जब फाइन पाउडर्स का साइज रिडक्शन की एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है ये डिटेक्ट करना होता है, तब नहीं क्या रिटिंगर्स लॉ यूज किया जाता है. मतलब रिटिंगर्स लॉ is nothing but the, in case of the Rittinger's law, the energy required is directly proportional to the new surface area produced. Okay, मतलब जितने ज़्यादा न्यू सरफेस एरिया हमको मिलेंगे, जितने ज़्यादा न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस होंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट हमको रहेगी. कैसे, बिकॉज जितने न्यू सरफेसेस मिलेंगे, मतलब न्यू सरफेसेस ज़्यादा कब मिलेंगे, जब नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे. जितने ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स उतनी ज़्यादा विगरसली या उतना रेट ऑफ साइज रिडक्शन ज़्यादा, जितना रेट ऑफ साइज रिडक्शन ज़्यादा उतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिटिंगर्स लॉ, विच इज इन रिटिंगर्स लॉ एनर्जी रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सरफेस एरियाज. नाउ नेक्स्ट इज द किक्स लॉ. ओके, so in case of the Kick's law is directly based on the size of particle. जैसे Rittinger's law में क्या था, Rittinger's law is based on the new surface area produced, वैसे Kick's law is based on the size of the particles. Okay, so here energy necessary for crushing material is proportional to the logarithm of the ratio between initial and final diameters, मतलब sizes of the particles, where E is the energy required per mass of the feed, starting energy, then energy calculate करनी है हमको, equals to Kk means it is nothing but the Kick's constant to the logarithm of d1 by d2. d1 again average initial size, d2 is the average फाइनल साइज बोले तो आफ्टर साइज रिडक्शन. ओके, यहाँ पे किक्स लॉ क्या बोलते हैं कि हियर एनर्जी रिक्वायर्ड इज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल. जितनी पार्टिकल की साइज हमें कम लगेगी, स्मॉलर पार्टिकल साइज लगेगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी. क्यों, क्योंकि पार्टिकल की साइज हमें स्मॉलर कब मिलेंगी, जब वो इफ़िशेंटली उनकी साइज रिड्यूस हो जाएगी, और इफ़िशेंटली साइज रिड्यूस होने के लिए हमें क्या लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी. ओके, सो हियर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द एनर्जी रिक्वायर्ड
required to effect elastic deformation before the fracture occurs and more accurate than the Rittinger's law. Okay, now किक्स लॉ क्या बोलता है हमें कि जो साइज इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल, और साइज ऑफ द पार्टिकल्स जितने कम छोटे साइज हमें चाहिए उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट हमें लगेगी इन केस ऑफ द साइज रिडक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट द किक्स लॉ. नेक्स्ट इज द बॉन्ड्स लॉ विच इज एंड इंटरमीडिएट बिटवीन द रिटिंगर्स लॉ एंड द Kick's law. Okay, now this law states that energy used for size reduction is proportional to the new crack length. Okay, new crack length means the diameter of your crack. Okay, so here the E by W, W means nothing but here bond introduce the work required. Okay, work required means again it is सिमिलर टू द एनर्जी रिक्वायरमेंट. ओके, मीन्स पार्टिकल्स को रिड्यूस करने के लिए, उनकी साइज रिड्यूस करने के लिए हमें कितना वर्क लगा, कितनी एनर्जी लगी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू द बॉन्ड्स लॉ. मीन्स E by W इक्वल्स टू 100 by D2 minus 100 by D1. अगेन here D2 is the diameter of the sieve aperture and D1 is the means D2 stands for the final particles and D1 stands for the initial particle. Okay, so this is nothing but the Bond's law. Bond's law depends on the diameter. तो जितना कम डायमीटर कब आएगा, जब आपका पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा. जितना छोटा पार्टिकल साइज, जितना कम पार्टिकल साइज, उतने वो पार्टिकल साइज का डायमीटर कम और उतनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा. रिटिंगर्स लॉ डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, Kick's law depends on the size of the particle, and Bond's law depends on the diameter of the particle. So these are the three laws of size reduction. Now next are the equipments of the size reduction. Now today we will only see the general equipment, that is the basic equipment which is required for reducing the size of any particle. So here the general parts of size reduction equipment is, first is the hopper, next is the milling chamber, and third is the discharge or receiver. Okay, now what does it actually means? Hopper, for what purpose hopper is required? Hopper is required for the feed of the material, to add the material into the equipment. Okay, now milling chamber, hopper में क्या होता है? थ्रू hopper हम क्या कर सकते हैं, वो equipment में कोई भी मटेरियल को ऐड कर सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पस द हॉपर इज प्रेजेंट. देन मिलिंग चेम्बर में क्या होता है? मिलिंग चेम्बर में वो सपोज से फॉर एग्जांपल अब हमें बॉल मिल्स में प्रेजेंट है, बॉल मिल थ्रू करना है हमको साइज रिडक्शन, तो उसमें बॉल्स प्रेजेंट रहेंगे. ओके, या फिर कोई भी शार्प एजेस प्रेजेंट रहेंगे जिससे हमारे पार्टिकल्स क्या होंगे, कट होंगे. ओके, सो दैट इज मिलिंग चेम्बर. मिलिंग चेम्बर बोले तो ऐसा चेम्बर जिसमें एक्चुअल साइज रिडक्शन की प्रोसीजर परफॉर्म होगी. हॉपर में से मटेरियल अंदर आएगा, मिलिंग चेम्बर में साइज रिड्यूस होंगी, और लास्ट में रिसीवर में क्या होगा, वो सैंपल जिसका साइज रिडक्शन करना था उसका साइज रिड्यूस मिलिंग चेम्बर में होने के बाद रिसीवर में से हम वो सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं. सो ये तीन जनरल पार्ट्स है कोई भी साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट के, जैसे कि हॉपर, मिलिंग चेम्बर एंड द रिसीवर. ओके, सो अदर एसेसरीज आर द एडिशनल. कोई भी एडिशनल एसेसरीज रह सकती है जैसे कि स्क्रीन और सीव्स. क्यों स्क्रीन और सीव्स का क्या इफेक्ट है इसमें कि साइज सेपरेट करनी है. सपोज फाइन्स को अलग कलेक्ट करना है, कोर्सर पार्टिकल्स को अलग कलेक्ट करना है, तो क्या होता है, मेश नंबर, मेश होल्स जो उसमें प्रेजेंट रहते हैं उससे हम, या स्क्रीन लगाकर हम क्या कर सकते हैं, साइज सेपरेट कर सकते हैं. देन साइक्लॉन सेपरेटर, अगेन साइक्लॉन सेपरेटर हम बिठा सकते हैं सेपरेशन के लिए. देन नेक्स्ट इज द डस्ट कलेक्टर. कोई डस्ट होगा, फाइन्स हो गए या डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे तो उसको कलेक्ट करने के लिए ये होगा. अदर एसेसरीज, बट मेन बेसिक एसेसरीज जो प्रेजेंट रहते हैं, बेसिक पार्ट्स, दैट आर नथिंग बट द हॉपर, मिलिंग चेम्बर एंड द रिसीवर. ओके, स्पेशल फीचर्स ऐड कर सकते हैं जैसे कि कूलिंग सपोर्टर. कूलिंग सपोर्टर किस चीज़ के लिए यूज होता है, जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस रहते हैं वो थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए कि उनका डिग्रेडेशन ओवरकम करने के लिए, उनका डिग्रेडेशन प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें कूलिंग सपोर्टर्स ऐड कर सकते हैं जो कि हीट को मेंटेन करे, टेम्परेचर को कम करे, जिससे हम वो थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस का डिग्रेडेशन रोक सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.